Elizabeth Jane had perceived from Henchard's manner that in assenting to dance she had made a mistake of some kind. In her simplicity she did not know what it was till a hint from a nodding acquaintance enlightened her. As the mayor's stepdaughter she learnt she had not been quite in her place in treading a measure amid such a mixed throng as filled the dancing pavilion. देखिए यहाँ पर एलिजाबेथ जेन को लग रहा है कि जब वो डोनाल्ड फारफ्रे के साथ पिछले वाले चैप्टर में जब डांसिंग पवेलियन पे गई थी, was it a good decision? Was it a good decision? No. वो इसलिए गुड डिसीजन नहीं था बिकॉज वो एक मेयर की लड़की है और मेयर समाज का एक बहुत बड़ा आदमी होता है और जो समाज का बहुत बड़ा आदमी होता है वो समाज के आम आदमियों की तरह व्यवहार नहीं कर सकता है। अब मेयर किसी पान की दुकान पर बीड़ी नहीं पी सकता है या चाय की दुकान पे इसी तरीके से फालतू बातें नहीं कर सकता है। उसके भी कुछ अनसेड रूल्स होते हैं और मेयर के बच्चों के भी रूल्स होंगे। तो अब एलिजाबेथ जेन को लग रहा है कि ये मैंने गलती कर दी, मैं अपने ओहदे से नीचे गिर गई। अब देयर अपॉन हर ears, cheeks and chin glowed like live coals at the dawning of the idea that her tastes were not good enough for her position and would bring her into disgrace. जो मैंने कहा वही इसने भी कहा। This made her very miserable and she looked out about her mother. But Mrs. Henchard, who had less idea of conventionality than Elizabeth herself, had gone away, leaving her daughter to return at her own pleasure. The latter moved on into the dark, dense old avenues, or rather vaults of living woodwork, which ran along the town boundary and stood reflecting. इस पैराग्राफ का क्या मतलब है? ये जो भी उसके विचार आ रहे थे, अब ये सब सोच करके वो अच्छा तो फील करेगी नहीं, बुरा ही फील करेगी, और जब बुरा फील करेगी तो कोई ना कोई चाहिए साथ निभाने वाला। अब वहां पर मिसेस हेंचर्ड होनी चाहिए थी लेकिन मिसेस हेंचर्ड है नहीं। अब वो अकेली किसी राह पे चल रही है, लेकिन उसके पीछे कोई आदमी होता है, वो होता है फारफ्रे। एंड इट्स यू मिस न्यूसन एंड आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, ही सेड, overcoming a sadness imparted by the estrangement with the corn merchant. May I walk on with you as far as your street corner? अब ये जो फारफ्रे है इसकी लड़ाई हुई है, किसके साथ हुई है? माइकल हेंचर्ड के पास। माइकल हेंचर्ड ने अभी इसको बोला है कि तुम मेरे अब मैनेजर नहीं रहोगे, अब तुम जाओ कहीं और चले जाओ। अब उसकी बेटी से बात कर रहा है तो अब वो उसके साथ चलेगा। She thought there might be something wrong in this, but did not utter any objection. So together they went on, first down the west walk and then into the bowling walk till Farfrae said, "It's like that I am going to leave you soon." अब फारफ्रे क्या कह रहा है कि अब ऐसा लगता है कि अब मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। She faltered. Why? Oh, as a mere matter of business, nothing more. But we'll not concern ourselves about it. It is for the best. I hope to have another dance with you. वो पूरी बात नहीं बताता है, अब वो घुमा फिरा के कहता है कि मेरी इच्छा है कि आपके साथ एक बार और डांस किया जाए। She said she could not dance in any proper way. वो कहती है कि मेरे को तो नाचना ही नहीं आता है। नहीं, but you do. It's the feeling for it rather than learning of steps that makes pleasant dancers. अब डोनाल्ड फारफ्रे क्या कह रहा है कि भाई ये फीलिंग होती है, स्टेप्स करना डांस नहीं होता है, जब डांस करने में मजा आता है वही चीज अच्छी इंपॉर्टेंट होती है। इट्स द फीलिंग। आई fear I offended your father by getting up this, and now perhaps I will have to go another part of the world altogether. अब फारफ्रे क्या कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके फादर को चोट पहुंचा दी है, अब उसको इस दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जाना होगा। आगे बढ़ते हैं।
This seemed such a melancholy prospect that Elizabeth Jane breathed a sigh, letting it off in fragments that he might not hear her. But darkness makes people truthful, and Scotchman went on impulsively. Perhaps he had heard her after all. I wish I was richer, Miss Newson, and your stepfather had not offended. I would ask you something in a short time. Yes, I would ask you to tonight, but that's not for me. अब वो क्या कह रहा है कि काश मैं थोड़ा ज्यादा पैसे वाला होता तो तुम्हारे पिताजी को उतना बुरा नहीं लगता। अब मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। अब वो कहता है कि आई वुड आस्क यू टू नाइट बट दैट्स नॉट फॉर मी। अब वो रुक जाता है, वो कुछ मांगना चाहता है लेकिन चुप हो जाता है। What he would have asked her, he did not say, and instead of encouraging him, she remained incompetently silent. अब फारफ्रे कुछ कहना चाहता है। एलिजाबेथ जेन समझ गई कि कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। तो वो चाहे तो इनकरेज कर सकते कि बोलो क्या कहना चाहते हो, लेकिन वो बोलती है कि नहीं 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 नहीं, नहीं। वो कुछ चुपचाप रहती है। Thus afraid one of another, they continued their promenade along the walls till they got near the bottom of the bowling walk. ये वही मीटिंग है कि लड़के लड़कियों में जब प्यार होने से पहले जो होती है ना हिचकिचाहट, वैसी हिचकिचाहट है। 20 steps further, the trees would end, the street corner and lamps appear. In consciousness of this, they stopped. अब वो चले जा रहे हैं। वो जंगल का रास्ता खत्म, स्ट्रीट का रास्ता शुरू। I never found out who it was that sent us down over Granary on a fool's errand that day, said Donald in this undulating tones. Did you ever know yourself, Miss Newson? अब फारफ्रे कह रहा है कि यार मेरे को नहीं पता, उस दिन तुमको भी एक चिट्ठी लिखी थी कि फारफ्रे तुमसे मिलना चाहता है। नहीं, चिट्ठी लिखी थी कि तुम यहां पर आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मुझे भी एक चिट्ठी मिली थी कि मैं डर्नोवर पहुंच जाऊं। हम दोनों पहुंच गए थे, लेकिन हम दोनों को किसने बुलाया था वहां पे हमको नहीं पता। वो कहती नेवर, उसको भी नहीं पता, किसको क्या पता। लेकिन अब फारफ्रे कहता है कि इट माइट हैव बीन दैट they thought they would like us to stay waiting there talking to one another. Hey, well, I hope you Casterbridge folk won't not forget me if I go. अब वो कहता है कि जिसने भी हम दोनों को बुलाया था वो चाहता था कि हम दोनों वहां पर मिलें, एक दूसरे से बातें करें। अब वो बोलता है कि आई होप आप लोग मुझे भूलेंगे नहीं जब मैं चला जाऊंगा। That I'm sure we won't, she said earnestly. I wish you wouldn't go at all. वो कहती है कि मैं चाहती हूं कि तुम ना जाओ। They had got into the lamplight. Now I'll think over that, said Donald Farfrae, and I will not come up to your door, but part from you here, lest it make your father more angry still. अब वो कहता है कि भाई अब तुम्हारे घर का दरवाजा आ गया है, आने वाला है। अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे पिताजी मुझ पर ऑलरेडी बहुत नाराज हैं। अब मैं नहीं चाहता कि वो और नाराज हो जाए मुझ पर। They parted. Farfrae returning into the dark bowling walk, Elizabeth Jane going up the street. Without any consciousness of what she was doing, she started running with all her might till she reached her father's door. Oh dear, what am I at? She thought as she pulled up breathless. वो भी परेशान है कि जा रहा है। Indoors she fell conjecturing the meaning of Farfrae's enigmatic words about not daring to ask what he fain would. Elizabeth, that silent observing woman, had long noted how he was rising in the favor of townspeople. अब वो हेंचर्ड के बारे में सोच रही है, फारफ्रे के बारे में सोच रही है कि कैसे वो चला जाएगा एंड बाकी चीजें। अब वो सोच रही है कि क्या वो फारफ्रे यहाँ पर रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, ऑल दिस थिंग्स। अब मैं थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, अगले दिन सारे कैस्टरब्रिज को पता चल जाता है कि हेंचर्ड ने फारफ्रे को निकाल दिया है। एलिजाबेथ जेन को पता चलता है कि अब फारफ्रे नहीं जा रहा है। अब उसको क्या पता चलता है? A man following the same trade as Henchard but on a very small scale had sold his business to Farfrae, who was forthwith about to start as corn and hay merchant on his own account. अब फारफ्रे ने क्या कर दिया है? फारफ्रे अब जा नहीं रहा है, he is staying here. अब वो क्या कर रहा है? उसने अपना बिजनेस खोल लिया है। कैसे खोला? कोई आदमी था
वो भी कॉर्न मर्चेंट था, अब उसने फारफ्रे ने उससे उसका बिजनेस खरीद लिया है। लेकिन दो चीजें हैं यहाँ पर। पहली चीज ये है कि पहली चीज मैं बता देता हूँ, मुझको थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। जो फारफ्रे है, इसने जो बिजनेस लिया है तो उसने अपनी दुकान भी लगाई होगी। तो उसकी जो दुकान है डॉनल्ड हैंचर्ड की दुकान से बहुत दूर है। तो मतलब कैस्टब्रिज जगह तो छोटी है लेकिन बिजनेस बहुत बड़ा है। तो उसने सोचा कि फारफ्रे ने सोचा कि हैंचर्ड को कोई खतरा भी नहीं होगा, ना मैं उसके कस्टमर चुराऊंगा, ना मैं वो मेरे कस्टमर चुराएगा। अब यहाँ पर एक और चीज होती है यहाँ पर। लेट मी गो बैक टू दैट पैराग्राफ। अब यहाँ पर हैंचर्ड का क्या रिएक्शन है? वेल, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, आई एम अ फ्रेंड ऑफ हिज। इफ यू आर नॉट, व्हाट आर वी? ओह, if I have not been his friend, who was I? I should like to know. Didn't he come here without a sound sure to his boot? अब यहाँ पे माइकल हेंचर्ड का ये कहना है कि यार ये मेरे से कंपटीशन कर रहा है, ये मेरे से कंपटीशन कर रहा है। इसको ये जब पहली बार आया था, इसको सब कुछ मैंने दिया था, रहने की जगह मैंने दी, नौकरी मैंने दी, इसको अपनापन मैंने दिया। अब ये क्या कर रहा है? मेरे को निकाल रहा है। ये तो गलत बात हो गई। अब वो उससे बदला लेने की सोचता है। अब देखना क्या क्या होता है। His friends of corporation did not specially respond. Henchard was less popular now than he had been nearly 2 years before. They had voted him to chief magistracy on account of his amazing energy. While they had collectively profited by this quality of the con factors, they had been made to wince individually on more than one occasion. So he went out of the hall, down the street alone. अब जो माइकल हेंचर्ड के जो आसपास के लोग थे, वो भी अब उससे बोर होना शुरू कर गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई अब ये नीचे जा रहा है। अगला जमाना किसका है? डोनाल्ड फारफ्रे का। अब वो घर पहुंचता है, एलिजाबेथ जेन को बोलता है कि डोनाल्ड फारफ्रे से दूर रहो। अब डोनाल्ड फारफ्रे के लिए वो एक लेटर लिखता है। सो आई मेक द रिक्वेस्ट दैट henceforth you and my stepdaughter be as strangers to each other. She on her part has promised to welcome no more addresses from you, and I trust therefore you will not attempt to force them upon her. ठीक है कि मेरी बेटी से दूर रहो। मेरी बेटी ने भी बोल दिया है कि वो भी आपसे दूर रहेगी। अब यहाँ पर एक बात है कि माइकल हेंचर्ड चाहता तो अपनी जो उसके लिए कंपटीशन है डोनाल्ड फारफ्रे, उसकी शादी एलिजाबेथ जेन से करा के अपना कंपटीशन खत्म कर सकता था, लेकिन उसने किया नहीं, क्योंकि वो उसकी जो बुद्धि है मोटी बुद्धि का आदमी है। और ये सब समझाने के लिए मिसेस हेंचर्ड भी वहां पर नहीं थी। अब उसके सामने तो ये जो भी है, व्हाटएवर इट इज, द कंपटीशन इज देयर। लेकिन डोनाल्ड फारफ्रे ने क्या किया है? डोनाल्ड फारफ्रे had opened the gates of the commerce on his own account at the spot of Durnover Hill as far as possible from Henchard stores, with every intention of keeping clear of his former friends, employers and customers. देखिए, माइकल हेंचर्ड के कस्टमर भी डोनाल्ड फारफ्रे के पास आ रहे हैं, लेकिन फारफ्रे कह रहा है कि नहीं, मैं आपसे सौदा नहीं करूंगा, क्योंकि आपने सौदा माइकल हेंचर्ड के साथ कर चुके हैं, तो मैं उनका नुकसान नहीं करूंगा, मैं अपने नए कस्टमर बनाऊंगा। डोनाल्ड फारफ्रे का एक कैरेक्टर है कि ही इज अ गुड पर्सन। अब आगे देखते हैं। ये बात मैं समझा चुका हूं, आगे के पैराग्राफ में भी यही है। लेकिन ये सारी चीजें जो फारफ्रे कर रहा है कि मैं माइकल हेंचर्ड के कस्टमर्स के साथ सौदा नहीं करूंगा, उसकी दुकान से दूर दुकान खोलूंगा, इसके बावजूद डोनाल्ड फारफ्रे का जो बिजनेस है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, जो आदमी कंपटीशन नहीं करना चाहता उसका फायदा हो रहा है, और माइकल हेंचर्ड जो उसके साथ मुकाबला करना चाहता है, जो उसको खत्म कर देना चाह रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। रियल लाइफ में भी यही होता है, जो दूसरे का नुकसान करना चाहता है उसका अंत में नुकसान हो जाता है, और जो दूसरे को आगे बढ़ाता है वो खुद भी आगे बढ़ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं, ऑलमोस्ट लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं। पूरी तरीके से तो नहीं पढ़ा सकता, फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पे ही फोकस कर रहा हूं। अच्छा, फारफ्रे को जैसे ही पता चलता है कि उसको कहा है कि एलिजाबेथ जेन से दूर रहना, तो कहता है ठीक है,
वो अब वो क्या कर रहा है, वो एलिजाबेथ जेन से मिलने की जो रिक्वेस्ट है उसको कहता है कि ठीक है मैं आपकी बेटी से नहीं मिलूंगा, मैं अपने व्यापार पे फोकस करता हूं। अब देखो, फारफ्रे चाहता तो इमोशनल होकर के एलिजाबेथ जेन से मिलना जुलना चालू रखता, लेकिन नहीं, वो क्या कहता है कि नहीं, मैं आपकी बेटी से नहीं मिलूंगा, मैं अपने व्यापार पे फोकस करूंगा। और आगे क्या होता है, इसको प्यार भी मिल जाता है, बिजनेस भी अच्छा चलने लग जाता है। ठीक है, एक और लेसन है कि बिजनेस पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, अ टाइम केम व्हेन अवॉइड कोलिजन विद हिज फॉर्मर फ्रेंड as he might, Farfrey was compelled in sheer self defense to close with Henchard in mortal commercial fire। देखिए, जब सैटरडे को दोनों दोनों लोग फार्मर्स से मिलते हैं तो फार्मर्स दोनों से सामान खरीदेंगे। माइकल हेंचर्ड के पास भी सामान है और जो हमारे डोनाल्ड फारफ्रे हैं उनके पास भी सामान है। तो फार्मर्स किससे खरीदेंगे? जिनके प्राइसेस कम होंगे, अच्छे होंगे और जिनका माल अच्छा होगा। तो यहां पर एक तरीके से शब्दों की लड़ाई नहीं हो रही है, प्राइसेस की लड़ाई हो रही है कि कौन कितना प्राइस नीचे करता है। माइकल हेंचर्ड प्राइसेस तो इसलिए नीचे कर रहा है, उसको फारफ्रे को हराना है। लेकिन फारफ्रे क्या कर रहा है? फारफ्रे भी बड़ा परेशान है। और जैसे ही कॉर्न मार्केट रूम, जहां पे नुमाइश होती है सामान की, कॉर्न की, कि भाई कौन ले रहा है, उसमें नाम आते हैं हेंचर्ड, एवर्डीन, शाइनर, ये सब बिजनेसमैन है, डार्टन एंड सोवर्स, और लास्ट में नाम आता है फारफ्रे का। इन स्टार्टिंग न्यू लेटर्स हेंचर्ड वाज स्टंग इनटू बिटरनेस। जैसे ही फारफ्रे का नाम पड़ता है, उसको उसके अंदर इतनी चिढ़ मचती है कि वो बहुत गुस्से में आ जाता है। उसको हाव देखता ना ताव देखता है। उस दिन के बाद से अगर डोनाल्ड फारफ्रे का नाम हेंचर्ड के घर में लिया जाता था किसी के भी द्वारा, तो वो कहता था कि तुम मेरे दुश्मन हो। वट आर यू टू माई एनिमी? देखिए, इस चैप्टर में पक्का हो गया है कि माइकल हेंचर्ड डोनाल्ड फारफ्रे को दुश्मन ही समझता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो यहां पर यह चैप्टर समाप्त होता है। आपको बस ये चीज नोट करनी है कि इस चैप्टर में क्या होता है, डोनाल्ड फारफ्रे का कैरेक्टर कैसा है। क्या वो भी माइकल हेंचर्ड को नुकसान पहुंचाना चाहता है? जब उसको बोला जाता है कि भाई एलिजाबेथ जेन से दूर रहो, तो क्या वो लड़ने चला जाता है? क्या भगा देता है एलिजाबेथ जेन को? नहीं, वो अपने बिजनेस पे फोकस करता है। और जब माइकल हेंचर्ड कहता है कि तुम मेरे मैनेजर नहीं, तो माइकल हेंचर्ड को उल्टा सुल्टा कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप चला जाने की कोशिश करता है। और बिजनेस भी खोलता है तो इस तरीके से खोलता है कि दूर, कहीं दूर, जिससे माइकल हेंचर्ड को कोई फर्क ना पड़े। तो ये हम कैरेक्टर की स्टडी भी कर रहे हैं। तो अगले चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू।